નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 જેમાં 5મું કાવ્ય ધરતી કી શાન આપણે આઈડિયલમાં પૂરીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી સાથે આઈડિયલ ખોલી અને પૂરવા માટે તૈયાર થઈ જજો. તો અહીંથી આઈડિયલમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 આપણને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे. बराबर है. तो अहियाँ આપણને પહેલો જ વિકલ્પ આપેલો છે કે ધરતી કી શાન કાવ્ય કે કવિ કોણ હૈ. તો તમને બધાને ખબર હશે આપણા ધરતી કી શાન કાવ્યના કવિ કોણ છે, તો કે પંડિત ભરત વ્યાસજી. બરાબર, પહેલામાં બી આવશે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, कवि ने किसे धरती की शान कहा है. तो તમને 4 ऑप्शन આપેલા છે, તેમાંથી આપણે એક એક ઓપ્શન જોવાનો છે. તો તેનો ઓપ્શન આવશે ડી, મનુષ્ય को धरती की शान कहा है. ત્યાર પછી ત્રીજું છે કે મનુષ્ય अंबर को किसके साथ जोड़ सकता है. તો તેનો જવાબ છે એ, धरती के साथ. ત્યાર પછી ચોથું છે કે મનુષ્ય કે નયનો મેં ક્યાં હૈ. તો તમને બધાને ખબર હશે શું આવે, જ્વાલ, ડી આવશે. ત્યાર પછી પાંચમું છે મનુષ્ય કિસકે સમાન ધીર હૈ. તો કે ધરતી કે સમાન ધીર હૈ, બી આવશે તેમાં. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે મનુષ્ય કિસકે સમાન ગતિમાન હૈ. તો શું આવશે, પવન કે સમાન. કિસ સમાન, પવન કે સમાન. બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ, સાતમું આપણને આપેલું છે કે મનુષ્ય ચાહે તો કાલ કો ખાલી જગ્યા. તો શું આવે, કાલ કો રોક લે આવશે ને. તો કાલ કો રોક લે. ત્યાર પછી આઠમું આપણને આપ્યું છે કે મનુષ્ય ચાહે તો ધરતી કો શું આવશે, અમર સે જોડ દે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણને 9મો વિકલ્પ આપેલો છે मनुष्य चाहे तो माटी से खाली जग्या. શું આવશે, અમૃત નિચોડ દે. શું આવશે, અમૃત નિચોડ દે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ. તો તમારે બીજો પ્રશ્ન તમારી આઈડિયલમાં છે કે કવિ મનુષ્ય કો બડા ખાલી જગ્યા માનતે હૈ. તો તમને જો ખાલી જગ્યામાં આપેલું છે મહાન, તો તમારે તમારા આઈડિયલમાં લખવાનું છે પહેલી ખાલી જગ્યામાં મહાન. ત્યાર પછી બીજું છે કે મનુષ્ય ચાહે તો નદીઓ કે ખાલી જગ્યા કો ભી મોડ દે. તો શું આવશે, મુખ. તમે પણ આઈડિયલમાં પૂરતા જજો. ત્રીજું છે કે પૃથ્વી કે લાલ તેરા ખાલી જગ્યા સા ભાલ. શું આવશે, હિમગીરી શાહ. इसका हिमगिरी सा भाल. ચોથું, પાપો કા ખાલી જગ્યા રૂકે પશુતા કા શીશ ઝુકે. શું આવશે, પ્રલય. શું આવશે, પ્રલય. અને પાંચમું આપેલું છે કે મનુષ્ય કે ખાલી જગ્યા અમર હૈ. શું આવશે, પ્રાણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 આપણને આપેલો છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે 1-2 વાક્ય में उत्तर लिखिए. बराबर. तो આપણને પહેલો જ પ્રશ્ન આપેલો છે कि इस गीत में कवि ने किसे सबसे बुद्धिमान बताया है. तो तेनो जवाब है कि इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે મનુષ્ય की मुट्ठियों में क्या बंद है. तो कि मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है. શું આવશે, तूफान. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન किसमें है. तो તેનો જવાબ છે કે ભગવાન मनुष्य की आत्मा में है. किसमें है, मनुष्य की आत्मा में.
ચોથું છે કે મહાકાલ કિસमें छिपा है, तो तेनो जवाब छे कि मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा है। पांचमू, तांडव का ताल किसमें है, तो तेनो जवाब छे कि मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। छठू, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है, तो तेनो जवाब छे कि कवि ने मनुष्य को उसकी शक्ति को पहचानने के लिए कहा है। त्यार पछी सातमो प्रश्न आपने आपेलो छे कि मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है, तो तेनो जवाब छे कि मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। किसका? युग का। आठमो प्रश्न है कि मनुष्य को किसके समान वीर बताया है, तो तेनो जवाब है कि मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। और नवमो प्रश्न है कि मनुष्य किसको थाम सकता है, तो तेनो जवाब है कि मनुष्य यदि चाहे तो काल को थाम सकता है। त्यार पछी 10मो प्रश्न आपने आपेलो छे पेज नंबर 29 पर कि मनुष्य की उड़ान किससे ऊंची है, तो तेनो जवाब है कि मनुष्य की उड़ान नभ से भी ऊंची है। 11मो प्रश्न है कि मनुष्य के प्राण अमर क्यों है, तो तेनो जवाब है कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे अमरता का वरदान मिला है। उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए मनुष्य का प्राण अमर है। त्यार पछी 12मो प्रश्न है कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, तो तेनो जवाब है कि जो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर फैलने वाली बुराइयों को रोक सकता है और दुनिया में परिवर्तन कर सकता है। बराबर है ने, तो कि मनुष्य जो धारे तो बधुं ज करी शके छे। बराबर है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जे तमने बधा ज प्रश्नोना जवाब तमने तमारी आइडियल में आपेला छे। बराबर है। 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न तमारे घरे सरस रीते वाँची लेवाना छे अने साथे साथे पाका पण करी लेवाना छे। तो हवे जोईए पेज नंबर 30 पर प्रश्न 6 तमने छे पूरवानो आप्यो छे। प्रश्न 4 અને 5 तमारे तमारी आइडियल में जोवाना छे। खाली तमने एना अर्थ अने एना जवाब तमने आपी दीधेला छे। तो हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्न नंबर 6 आपेलो छे कि उचित जोड़ मिलाइए। बराबर ने, तो तमने जो कोठो आपेलो छे अ ब अने साइड में तमने आपेलो छे उत्तर, तो तमारे तमारी आइडियल में पूरवानुं छे। जो जेनो जवाब तमने अहीं आपी दीधेलो छे कि मनुष्य की आत्मा में शुं एनो जवाब आवशे, तो कि पेला ओलामां लखवानुं छे तमारे सी। त्यार पछी बीजू मनुष्य के नयनों में शुं आवशे, ई आप्युं छे शुं आवशे ज्वाल है। त्यार पछी त्रीजू मनुष्य की भ्रुकुटी में शुं आवशे, त्रीजू एफ आवशे तांडव का ताल है। त्यार पछी चौथू मनुष्य की वाणी में शुं है, युग का आह्वान है, ए आवशे। अने मनुष्य की छाती में शुं आवशे, छिपा महाकाल है। बराबर। आवी रीते तमारे सी ई एफ ए अने बी एवी रीते कोठो पूरवानो छे। त्यार पछी नीचे जोईए आपणे बाळको। नीचे तमने प्रश्न नंबर 7 आपेलो छे। जुओ एमां आपेलुं छे कि काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। बराबर। तो तमारे क्यांथी पूरी करवानी छे, तो पेलुं आप्युं छे तू जो चाहे खाली जग्या डैश डैश करी अने भगवान है रे त्यां सुधी तमारे एक લીટીમાં એક કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે। તો અહીંયા જોઈ લઈએ આપણને। અહીંયા આપેલી છે, જો તું જો ચાહે પર્વત કો
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों के फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। बराबर, आटली काव्य पंक्ति तमारे अंदर लखवानी छे। त्यार पछी बीजी पूछेली छे, जुओ, पापो का प्रलय पछी डेश डेश करीने उडान है रे। तो अहींया नीचे तमने ए पण काव्य पंक्ति आपी दीली छे। पापो का प्रलय रुके पशुता का शीस झुके, तू जो अमर अगर हिम्मत से काम ले, गुरुषा मतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। बराबर, आ बीजी काव्य पंक्ति है। तो आ बंने काव्य पंक्ति तमारे आमा आइडियल में जोई अने तमारे पूरी करी नाखवानी छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 तमने आपेलो छे के निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहलू आपेलू छे शान, तो शुं थशे? गौरव। बीजू आपेलू छे धरती, तो के वसुधा, पृथ्वी, भूमि बधुं थाय हो बाळको, एमांथी गमे ते तमे लखी शको छो। त्यार पछी मुख, तो के प्रवाह। चौथुं अंबर, तो के गगन, नभ, व्योम बधुं थाय। पांचमुं, तो के ज्वाल एटले के अग्नि। बराबर, पछी भूचाल एटले के भूकंप, भाल एटले के कपाल अने भ्रुकुटी एटले के भोह भोह। बराबर, त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपेलो छे कि नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो विरोधार्थी शब्द तमारे आपवाना छे अने सामे सामे जो तमने डेश करीने वाक्य लखवा माटे पण લીટી आपेली छे। पहली લીટી छे अहींया तमारे विरोधी शब्द लखवानो छे अने सामे जे લીટી आपेली छे तेमां तमारे तेनुं वाक्य लखवानुं छे। तो पहेलुं ज आप्युं छे के अमृत, तो जो बाजुनी લીટી छे त्यां लखजो विष अने एनी सामे छे त्यां लखजो वाक्य के मीराबाई ने विष पान किया था। त्यार पछी बीजू छे वरदान, तो के अभिशाप। वाक्य छे कि ऋषि मुनि क्रोधित होकर दानवों की अभिशाप देते थे। त्रीजू ऊंचा, तो के नीचा। वाक्य छे कि चोरी पकड़ी जाने पर चोर का सिर नीचा हो गया। पांचमू छे पाप, तो के पुण्य। एनु वाक्य जोवो कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना एक पुण्य का कार्य है। पांचमू छे मृत्यु, जीवन, तो शुं थशे? मृत्यु। तो एनु वाक्य छे कि भारतीय सैनिक मृत्यु से नहीं डरते। बराबर छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10 आपने आपेलू छे कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश से उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो पहलू आप्युं छे हुष्ट पृष्ठ, एटले शुं थशे? तगड़ा। शुं थशे? तगड़ा। त्यार पछी बीजू आपेलू छे संवाद, तो के बातचीत। त्रीजू छे शीघ्र, एटले के जल्दी। चौथुं आपेलू छे जोहर, जोहर एटले थशे पराक्रम। शुं थशे? पराक्रम। त्यार पछी अजनबी एटले के अंजान। वेदांत एटले के ब्रह्म विद्या। त्यार पछी मुकुंदरम एटले के नसीब। त्यार पछी आपेलू छे सागीर एटले के शिष्य। शुं थशे? शिष्य। त्यार पछी 9मું आपेलू छे वृत्ति, तो के मनोस्थिति। अने 10मुં आपेलू छे स्पष्ट एटले के साफ साफ। हवे त्यार पछी 11मो प्रश्न आपने आपेलो छे कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तमारे टक्कावारी क्रम में गोठवी अने एने लखवाना छे शब्द। तो तमने शब्द आपेला छे तूफान, वरदान, शीश, क्षति, आईना अने झंकार। तो तेनो जवाब आपेलो छे तेनी सामे तमारे लखवानुं छे। पहेला कयुं आवशे? आईना। त्यार पछी क्षति, पछी झंकार,
ત્યાર પછી તુફાન, વરદાન અને છેલ્લે આવશે શીશ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 12 આપેલો છે. જુઓ, તમને પ્રદૂષણ વિષય પર નિબંધ લીખીએ. તમને નિબંધ લખેલો આપ્યો છે. ઘરે તમારે સરસ રીતે વાંચી અને પાકો કરવાનો છે. પ્રદૂષણ વિશે આપણને આપેલું છે. प्रदूषण का अर्थ तो આપણે જોઈ લઈએ. प्रदूषण का अर्थ कई तरह के हानिकारक और जहरीले तत्वों का पर्यावरण में मिलता है. प्रदूषण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के सामान्य जीव को प्रभावित करता है और प्राकृतिक जीवन को बिगाड़ देता है. प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण. वाहनों की बढ़ती संख्या, जहरीले गैस के उत्सर्जन, कारखानों के निकलने वाले धुएं आदि के कारण हमारे ग्रह पर वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इस वायु प्रदूषण के कारण जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हमें कई तरह की फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है. इसी तरह के भूमि और जल प्रदूषण पानी तथा भूमि के कई तरह के कीटाणु, जीवाणु और हानिकारक रसायन आदि मिलने के कारण उत्पन्न होता है. पीने के कारण पानी में भी कई तरह के कीटकनाशक फंगस और थोरियम आदि मिलने के कारण जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है. प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए सरकार को कई तरह के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है. इसके लिए वाहनों से उपयोग को कम करने के साथ पानी की बचत करनी होगी तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा. અહીંયા આપણે આઈડિયલમાં 5મું કાવ્ય પૂરું કરીએ છીએ. તો ઘરે તમારે હું PDF મોકલીશ, તે પ્રમાણે તમારે આઈડિયલ પૂરી નાખવાની છે. બરાબર છે? હવે આવતા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 6 જોઈશું. તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.